So, so as you said that day that you open a book, I mean, whatever comes in your hand, you just open and you get your answer. So Correct. I was reading a book about a monk, and I just picked that up and I just opened the page, and it said that you cannot do this at home. Okay, so I couldn't understand this. Okay, and then I read a paragraph about the whole thing, what was written. And then I sat in the car and I was just thinking that कि कैसा है, मतलब बोल तो रहे थे कि आंसर मिल जाता है, बट इसमें तो कुछ क्लू ही नहीं लग रहा है. What is it? What is this sentence trying to tell me? And I just realized Mm. that uh, it was trying to tell me about detachment. So Oh, when I wow. am detached, I can actually be the channel of blessings for everyone. So, it was like it just clicked me, and I was like, oh my God, it has such a deep meaning, and I could not understand it at all that time. And that's why that day I did not share it with you. But when I told this to Wade, he was like, you should write this down, and you should Yes, share it before it just goes out of your mind. So absolutely. I just realized to share it with you. Thank you. What a fantastic thing, no? So, detachment does not mean that you start having, I mean, you start moving away from your loved ones or something. Uh-huh. That is not detachment. Detachment means that you don't get personally involved Yeah. in everything, and you actually can then give the right healing, or you can do the right seva for things. So, have you understood what you're going to do? Yeah, so so I never get so attached, but yes, it just clicked me that whenever I get attached to it, then it is like an awareness which has brought the sentence has brought it to me now. Hmm. So I will always carry this awareness which has come to me that agar kuch nahi ho raha hai, ya if I'm feeling something and then I'm doing, so it's like more of doing and not really, you know, uh, in the being. Yeah. So yeah, so it's So like just let okay. go. Yes, it's okay that if it Yeah. doesn't happen, it's okay. Okay. If Yeah. somebody's not there, it's okay. If something has not happened, Okay. it's okay. To be okay with Yeah. something that does not happen. To be okay with someone not being there. What a True. fantastic message to receive. Amen. God bless you. God bless you for this. Fantastic. Thank you. You can really follow this, and all of us can follow this in our life. And believe it or not, if something happens which is not expected or which is not okay with us, and then we become okay with that, is also detachment. Today, this message of yours is a very, very strong and very needed message by one of our new members who's here, Somnath. And सोमनाथ शायद ये मैसेज आज शायद तुम्हारे लिए ही आया है, because he is in a state today where he needs somebody to tell him that it's okay to be where you are. It's okay to be how you are, in what state you are. You only need to work on detachment and need to work on the path that True. life has Okay, for you. okay. राइट सोमनाथ, सो बहुत सुंदर मैसेज आज नेहा की ओर से. शायद नेहा इज द चैनल टुडे टू टेल यू दिस, Thank सोमनाथ. you. Thank you. Okay, where you have to today be learn to detach yourself from what really has happened, to Mm-hmm. now figuring out what you can do to walk this path that you have been given, Okay, ma'am. isn't it? Yep. Yeah, what a fantastic message that is. Wonderful. So, detachment is something that we have seen today that Neha has received.
Neelam has received that be very careful with the words you use. Some of you were not there when she was sharing her experience, and she shared such a beautiful thing that उसकी जो हेल्पर आती है घर पे, उसके यहाँ बेबी हुआ है जिसकी वजह से वो नहीं आ पाती है, और नीलम ने उसको झटक दिया और उसको कह दिया कि तो क्या हुआ, ये तो होता रहता है, तुमको काम तो करना ही पड़ेगा. And then when she sat down and when she actually wrote and she understood that this is not something I should say, this is not how I should say it. And that realization itself is so beautiful. So नीलम, हम चाहेंगे कि आप उससे प्यार से उससे कह सकते हैं बाद में कि कहा सुनी माफ करे. ओके. और नीलम को भी किसी ने कुछ ऐसी ऐसी बातें कह दी जो उसको बहुत खराब लगा है, और ये चीज हम कितने प्यार से आज समझ सकते हैं कि शब्दों का हमारी जिंदगी में कितना महत्व होता है. हर एक शब्द आज हम जब कहते हैं वो हमारी जबान से नहीं निकल रहा, वो हमारे विशुद्धि से नहीं निकल रहा है. वो शब्द कहाँ से आ रहे हैं? वो शब्द आ रहे हैं आपकी नाभि से, वेयर योर लाइफ इज. वो शब्द आ रहे हैं आपके अनाहता से, आपके दिल से. सो हर एक शब्द जो आज हम कहते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं. और ये बहुत खूबसूरत तरीका है. आपका आज कोई भी सवाल हो जिंदगी में, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो आपके चलता कोई एक किताब अगर होगा जो आप पढ़ते हैं या आपके बेड साइड पे रखते हो या हमेशा आपके पास रहती है, ज्यादा कुछ नहीं, उस किताब से बात करिए कि ये मेरा सवाल है, इस सवाल का मैं जवाब ढूंढ रहा हूँ, प्लीज मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए. एंड ओपन दैट बुक, and wherever that book will open, believe it or not, your answer will be there on that page. Yes, it's very much true. We get an answer that moment. है ना? Yes. It happens. So I'm so happy, Neelam, that you're writing. और जितना आप लिखेंगे ना, उतने कॉन्शियसली, उतने अवेयरनेस के साथ आप जिंदगी जी पाएंगी, और आप खुद देखेंगे कितनी इजी हो जाती है लाइफ. First, I should not sleep at night. ये सब thoughts मुझे आते थे रातों को, but now I'm sleeping peacefully after writing. So beautiful, so beautiful. अब आप सिर्फ इतना कीजिए एक्स्ट्रा, आप अपने नाभि में और अपने नाकों में एक जरा सा ड्रॉप वार्म घी का डालिए, घी का. ये मौसम भी ऐसा है, इस मौसम में हम सबको ये करना चाहिए. मैं भी करूंगी. नाभि में और अपने दोनों नाकों में वार्म घी, निवाया घी जरूर डालिए सोने से पहले. इन्होंने निपुर क्या बताया, इन्होंने लिखने का क्या बताया इन्होंने, मैंने चालू नहीं था मेरा. कुछ बुक्स लिखने का बताया ना आपने. बहुत अच्छी शेयरिंग की आज, एक्चुअली बहुत ही बढ़िया. उन्होंने बताओ ना मुझे प्लीज, कैसे उनकी जो हेल्प के लिए जो काम वाली आती है, उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ था, और नीलम ने उसको थोड़ा झटक दिया कि ये तो होता रहता है, काम पे तो आना ही पड़ता है. और बाद में उसको रियलाइज हुआ कि जब वो लिख रही थी, ऐसे शब्द हमारी जिंदगी में सिर्फ दुख और टेंशन और स्ट्रेस लाते हैं और किसी और को भी खराब लगता है. सो ऐसे शब्द हमें नहीं कहने चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए. मतलब लिख क्या रही थी, जो भी उसने बोला वो लिखती है सब जो भी दिन भर में हुआ. तो आपको याद होगा, ये हमने किया था क्लास जहाँ पर मैंने बार बार स्ट्रेस करती हूँ इस चीज पर कि दिनचर्या में जो भी चीजें हुई है उसके लिए आपको धन्यवाद करना है, उसको आपको लिखना है. So this is for all the new people also who have joined us. Every day before sleeping, आपकी एक किताब रखिए और उस किताब में आप रोज लिखिए
10 लिखिए, ज्यादा मत लिखिए, 10 लिखिए कि आप किस चीजों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो आपके दिनचर्या में हुई है जिसके लिए आप धन्यवाद कहना चाहते हैं, जिसके लिए आप माफी मांगना चाहते हैं। ओके, ये सिर्फ 10 लिखिए, ज्यादा नहीं, पर रोज लिखिए। और रोज लिखने से आपको समझ में आएगा कि कैसे जिंदगी आसान हो रही है, कैसे हर एक चीज पर हमारा ध्यान जा रहा है, और कैसे हम धीरे धीरे लाइफ में से एक्सपेक्टेशंस को दूर कर रहे हैं, और जो आ रहा है उसे जल्दी अपना रहे हैं, आसानी से अपना रहे हैं। ओके, तो ये आप जरूर कीजिए उर्मिला आंटी, आप भी जरूर कीजिए, है मतलब ना? थैंक यू लिखना है और माफी मांगनी है। यस, 10 कोई भी किसी से समझो, ये तो किसी को सॉरी बोलना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, ये सॉरी शब्द जो है ना, क्या? ये जो सॉरी शब्द है, ये मैंने एक चीज नोटिस की है। जब बच्चे सॉरी नहीं कहते हैं तो हम कैसे उनको कहते हैं कि ये देख कैसा बच्चा है, सॉरी भी नहीं बोलता है ना? हम्म। अभी से ऐसा है तो बड़ा होके क्या करेगा, है ना? हम्म। आपको ये बात समझनी चाहिए, हमें एक बात समझनी चाहिए कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और उन्हें पता है कि ये गलती मैं फिर से करने वाला हूं। उन्हें पता है कि ये गलती मुझसे होगी कि नहीं, क्या पता। तो इसीलिए वो जल्दी से सॉरी नहीं कहते, क्योंकि वो माफी जो चीज की मांगते हैं उसका मतलब ये होता है कि मैं समझ चुका हूं, जेव्हा अब लिहायचं गलती मुझसे नहीं होगी, हा है दे ना? ना मग. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक चीज के लिए सॉरी बोल रहे हैं। कुछ भी करते हैं, अच्छा सॉरी, अच्छा कुछ भी, अच्छा ओ सॉरी सॉरी, अच्छा अच्छा सॉरी। हम ये भूल जाते हैं कि सॉरी का महत्व बहुत गहरा है। इतनी जल्दी से एक्चुअली आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में सोचिए, क्या मैं ये गलती फिर से करने वाला हूँ? अगर हो सकती है तो इनफैक्ट आपको ये बात बोलनी चाहिए आगे। देखिए, मुझे पता है मैंने दिल दुखाया है, आई एम सॉरी, मिक्षामी दुग्गड़म, आई एम सॉरी, लेकिन हो सकता है ये गलती मुझसे वापस हो जाए, क्योंकि वी डोंट नो कि वी विल मेक द सेम मिस्टेक अगेन और नॉट। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट परफेक्ट। सो अगर आप कोई भी चीज के लिए माफी मांग रहे हैं, या आप अपनी किताब में भी लिख रहे हैं, तो ये बात जरूर लिखिएगा कि मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं शायद ये फिर से करूं, उसके लिए आप मुझे गाइड कीजिए कि मैं ये ना करूं। कि ये जितना हम ज्यादा अपनी जिंदगी में ढालेंगे ना, उतनी ज्यादा खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी, उतनी ज्यादा आसान लाइफ हो जाएगी, और उतना ज्यादा ना आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, उतने ही पॉजिटिव लोग आपके जिंदगी में आएंगे, नेगेटिव चले जाएंगे। उतने ही पॉजिटिव चीजें होने लगेंगी हमारी लाइफ में, और नेगेटिव चीजें दूर होने लगेंगी। उतने ही अच्छी चीजें होने लगेंगी, नेगेटिव चीजें बंद हो जाएगी होना। एंड अपने आप ही, जैसे नेहा को सडनली क्लिक हुआ ना कॉन्शियसली, क्योंकि उसने ध्यान दिया है, वैसे आपको भी कॉन्शियसली ऐसे क्लिक होने लगेगी चीजें। जिस चीज के लिए आप शायद सोचते भी नहीं थे, या बहुत ज्यादा सोचना पड़ता था ना, वो सारी चीजें अचानक से साफ नजर आएगी आपको। ओके, तो ये जरूर कीजिए। एनी अदर शेयरिंग बिफोर वी मूव ऑन? सो मुद्रा, जैसे आप सब One, जानते हैं। one little question. यस,
So I wanted to ask, like the book you say should be on the bedside. So should it be the same book, or we keep changing it, or how does it work? Any book today, even the book you're writing in right now, Uh-huh. even your own diary, by the way. आपके पास अगर आपकी किताब है जिसमें आप लिखते हो, उसको भी अगर आप पकड़ोगे और कहोगे कि प्लीज प्लीज डायरी, दिस इज माय क्वेश्चन, ये मेरा सवाल है और प्लीज मुझे इसका जवाब दे दो. आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड, कैन यू प्लीज गिव मी माय आंसर? And believe it or not, if you open your diary, you will get your answer. You will get your answer. It can be in a magazine also. It can probably be in a newspaper. You don't know. But as long as your intention is right, as long as you're speaking from your heart, it happens. I'll try it. Yes, you must do it. And you see it. And if it works for you, Madhulika, please let us know. Yeah, definitely. Okay. Thank you. It definitely works, Madhulika. There, see, we have more validation here. Yeah, I know. This is a new thing which I have to still try. I am going to introduce you all one by one to more magical things, which are actually not magical, they are logical. But we will do it slowly, one by one, step by step. Right. Okay? सबने मुद्रास को देखा होगा. हमने ग्रुप पे आई थिंक ऑलमोस्ट शायद 6 या 7 मुद्रास अब तक हमने ग्रुप पे डाली है. उस पे कोई भी कंफ्यूजन किसी का भी? जो नए आए हैं ग्रुप में, आपके लिए स्पेशली मैं मुद्रास फिर से कल वापस रिपीट करके ग्रुप पे डाल दूंगी, ताकि आप लोग भी अवेयर हो जाएं. हम मुद्रास पे चर्चा कर रहे हैं, मुद्रास को सीख रहे हैं. सो जो नए आए हैं ग्रुप में, आई विल डेफिनेटली पुट द मुद्रास अगेन फॉर यू. ओके, so these mudras again, the 6 mudras whatever you have sent, each one has to be done every day for 5 minutes, or how does it work? If you can manage, this is fantastic. If you cannot manage, then do whichever mudras you feel connect to you. You can do. I am going to share 6 more. Oh, okay. Okay, every day I'm sharing one, so that you all can practice that on that day. You can add one. Otherwise, it is no fun. So every day, one mudra. So I'm going to add, in fact, some more mudras, and these are all basic mudras जो मैं दे रही हूँ. तो ऐसे कितने मुद्रा हैं? बहुत हैं. Actually, basic में 10-12 मुद्रास आते हैं जो बेसिक है. Okay? So ये इतना भी अगर हम फॉलो करें ना, तो हमारे लिए काफी है. So आज का जो मुद्रा था वो था शंख मुद्रा. So शंख मुद्रा मैंने वीडियो तो डाला है, बट आप सबको आई एम श्योर समझ में आ ही गया होगा. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, सो आपका थंब ऐसे होगा, चारों उंगलियां ऐसे होगी, फिर ये जो उंगलियां हैं ये इस तरह से होगी. ओके, ऐसे यहाँ पर, एंड देन योर थंब विल टच लाइक दिस. सो दिस इज शंख मुद्रा, और ये दोनों हाथों से हमें करना है. ओके, सो इसमें ऐसे होगा, fold, touch and hold. Shankh Mudra is excellent for your voice, for Vishuddhi Chakra, for thyroid, for tonsils, for colds, coughs. So आपको throat के issues हैं तो Shankh Mudra is very good. अगर आप express नहीं कर पाते हैं अपने आप को तो Shankh Mudra is very good. Stammering होता है Shankh Mudra. आपको डर लगता है कभी कोई चीज से, तो शंख मुद्रा में बैठिए, आपका डर चला जाएगा. सो शंख मुद्रा इज वेरी गुड फॉर दैट. शंख मुद्रा इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर डाइजेशन सिस्टम. सो वैसे मोस्टली सारे मुद्राज आर एक्सीलेंट फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो आप शंख मुद्रा कर सकते हैं. तो शंख मुद्रा की खासियत है कि इसमें पूरा सब कुछ इन्वॉल्व होता है. सो इट इज एक्सीलेंट फॉर दैट.
Okay, it will bring you peace, and definitely it will keep you cool. Okay, it cools you, it calms you down. So अगर आपको गुस्सा आ रहा है कोई चीज के लिए, आप शंख मुद्रा में बैठ सकते हो, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा. ओके, सो शंख मुद्रा उसके लिए बहुत अच्छा है. दोनों हाथों से करना है हमें, याद रखिए सारी मुद्राज हमें दोनों हाथों से करनी चाहिए. और बैठने की पोजीशन क्या रहनी चाहिए? मैंने जैसे 3 पोजीशंस आप लोग को सिखाई हुई है. एक है अपने वज्रासन में बैठ सकते हैं. राइट. दूसरा है हम पद्मासन में बैठ सकते हैं. ओके. तीसरा है हम अर्ध सिद्धासन में बैठ सकते हैं. तो ये 3 आसन तो बेस्ट ही है. इसके अलावा आप नॉर्मली सोफे पे भी बैठ के आप आराम से मुद्रा कर सकते हो. आप अपने बेड पे बैठे हो या सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे हो तो भी आप मुद्रा कर सकते हो. लेकिन कोई भी चीज करते हैं तो ध्यान रखिए अपना स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए. एनर्जी आफ्टर ऑल ऊपर की तरफ जानी चाहिए. सो इसीलिए वी शुड कीप आवर स्पाइन स्ट्रेट व्हाइल डूइंग एनीथिंग. So the feet has to touch the floor or not necessary? Not necessary. No, not necessary. Okay. And for how much time should we do it? Every mudra, actually, ideally, you should do for 45 minutes. You should do mudra. अब 45 minutes में अगर आप suppose से 4 या 5 मुद्रा कर रहे हैं तो कितने कितने होंगे? Each mudra will be for about 7 minutes, or you can do each mudra for 5 minutes. ऐसा. Ideally mudras should be done for 45 minutes. अगर आप 45 minutes नहीं कर पा रहे हैं तो you will do how many? You will do 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Okay. So 15 minutes में आप 3 मुद्रा कर लो, 15 minutes में आप 2 मुद्रा कर लो. Okay. So इस तरह से, या आप सुबह आधा घंटा कर लो, शाम को आधा घंटा कर लो. तो सुबह के टाइम पे आपने 4 मुद्रास की, शाम को वापस आपने 4 मुद्रास कर ली. So basic idea is that mudras should be done at least for 45 minutes. और ये आप डिवाइड करके पूरे दिन में कर सकते हैं, या आप एक टाइम पे 45 मिनट्स कर सकते हैं अलग अलग मुद्रास. ओके. अगर वेल बीइंग के लिए आप मुद्रा कर रहे हैं तो वेल बीइंग में आप 2 या 3 मुद्रा लीजिए और उसको आप रिपीट करते रहिए, तो वो भी आपको बहुत फायदा देगा. सो यू कैन डू लाइक दैट ऑल्सो. ओके. एक और आपको ट्रिक बताती हूँ. दोनों हाथों में से आपको सेम मुद्रा करने की जरूरत नहीं है. ओके. सो अगर सपोज इससे मैं ज्ञान मुद्रा कर रही हूँ तो इससे मैं जल मुद्रा कर सकती हूँ. ओके. सो ये चीज ध्यान में रखिए. सपोज इससे मैं अपान मुद्रा कर रही हूँ तो इससे मैं प्राण मुद्रा कर सकती हूँ. Okay, so not necessary that you have to do the same mudra in both hands. You can do Is different it really mudras, okay, Nupurji? but remember to interchange also. So अभी मैंने इसमें क्या किया है? प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा. तो अब मैं थोड़ी देर बाद क्या करूंगी? अब इसमें मैं प्राण मुद्रा करूंगी और इसमें मैं अपान मुद्रा करूंगी. Okay, so you can interchange also. So you can do like this also, no problem. Okay. Remember, your right hand and your right side hand controls your left brain and left side, and your left side and left hand controls your right side right brain. So ये हाथ की जो मुद्रास आप कर रहे हो, it is helping you on this side. Why I am telling you this is, suppose आपको headache है, लेकिन आपको एक ही तरफ headache है, तो आपको अगर लेफ्ट साइड पे हेडेक है तो आप कौन सा हाथ का मुद्रा करोगे? राइट साइड. इसीलिए अगर आपको लेफ्ट आंख में इंफेक्शन है तो राइट हैंड की मुद्रास आपको ज्यादा इफेक्ट करेंगे. ओके. लेफ्ट कान में इंफेक्शन है तो हम राइट हैंड की मुद्रास हमें ज्यादा इफेक्टिव होंगे.
So right hand affects the left side, left hand affects the right side of the body. Okay, so this is something which we can pay attention to. And yes, we can do different mudras in both our hands. So this is also something that is learning for today. Okay, so please do practice all the mudras, and I'll keep putting every one mudra every day for all of you. और जो नए आए हैं उनके लिए मैं फिर से कल डाल दूंगी वो mudras. Is there any easy way to learn the mudras? Because कई बार confusion रहता है कि ये वायु है कि ये अपान मुद्रा है, क्या कर रहे हैं हम? हाँ, तो एक चीज तो मैंने जो समझी है, जो मेरे लिए इजी हो गया था, वो एक चीज मैंने क्या समझी, जैसे ये अग्नि है, अगर ये बात मैं समझ जाती हूँ कि ये अग्नि है और ये जल है, Okay. ये दो चीजें याद आ गई कि ये अग्नि है, ये जल है, जो सबसे बड़ी उंगली है वो है आकाश, Yes. जो सबसे बड़ी उंगली है वो है आकाश, और जो दिल से करीब है वो है धरती, जो दिल से कनेक्टेड है रिंग फिंगर वो है धरती। तो बचा क्या? हवा, एयर। तो ये एक्चुअली 5 तत्व पहले अगर हम जान लेना चाहिए। सो ये है अग्नि, ये तो पक्का है, और ये है जल। बचे क्या? सबसे बड़ी उंगली है स्पेस, सबसे ज्यादा है स्पेस, उसके बाजू में रिंग फिंगर इज धरती, हार्ट, व्हाट वी आर मेड ऑफ, एंड देन ऑफ कोर्स बचा हुआ क्या है? एयर, वायु। सो अब आपको कैसे समझ में आएगा बेसिक्स? दिस इज व्हाट वायु मुद्रा, यानी कि आज्ञा। ओके, दिस इज व्हाट स्पेस, शून्य। शून्य को हम कैसे करेंगे? दिस इज शून्य। दिस इज व्हाट पृथ्वी मुद्रा, यू टच अग्नि एंड पृथ्वी, दिस इज पृथ्वी मुद्रा। दिस इज व्हाट जल मुद्रा, है ना? इजी। फिर तो ये 5 तो हो गए। अब इसके अलावा क्या हो गया? सारे इकट्ठे कर लिए, एक थंब को फोल्ड कर लिया, ये क्या हो गया? लिंग मुद्रा, 1 थंब अप, कोई भी। व्हाट इज दिस? लिंग मुद्रा। इजी। ओके, सो ये इजी हो गया। देन बचा क्या? प्राण मुद्रा। सो प्राण मुद्रा क्या होगा? पृथ्वी, जल एंड अग्नि, हमारे प्राण, पृथ्वी, जल और अग्नि, प्राण मुद्रा। एंड अपान मुद्रा इज पृथ्वी, आकाश एंड अग्नि, पृथ्वी, आकाश एंड अग्नि। जब हमें कोई चीज को कम करना है, हमारी बॉडी में से कम करना है, फॉर एग्जाम्पल फीवर, ओके, उसको कम करना है हमें टेम्परेचर, या हमें कोई भी जब कम करना है तो हम क्या करेंगे? इस तरह से फोल्ड करेंगे, कम करना है। अब जैसे आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपकी बॉडी में पानी ज्यादा हो गया है, ओके, सो आपकी बॉडी फूक गई है, वाटर रिटेंशन हो गया है, सो हमें अब क्या करना है? जल को कम करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको फोल्ड करेंगे। सो फोल्ड करने का मतलब है कम करना, उस चीज का जो इफेक्ट है उसको हमें बॉडी में कम करना है ना? अगर आपकी बॉडी में पेन हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है, ओके, सो इसका मतलब क्या है? आपके शरीर में वायु फैल गया है, ओके, सो हम क्या करेंगे? ऐसे
पेन रिलीफ करेंगे. जो हवा अननेसेसरली बराबर नहीं है या ज्यादा है उसको हम रिलीव करेंगे. सो इस तरह से. सो यू फोल्ड. सो जो भी चीज को हमें कम करनी है, टेंशन, लाइफ में टेंशन, ओके, उसके वजह से पूरा का पूरा सब कुछ बिगड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे. फोल्ड. यू कैन डू दिस. ओके, this is pustak. You fold and sit. It helps to relieve tension. You're reducing everything and calming down completely your body. Yes. ऐसे मुट्ठी इस तरह से just press आराम से. या ऐसे भी कर सकते हैं, बट दबाना नहीं है, ऐसे अंदर नहीं दबाना, नाखूनों से नहीं करना है, अपने इससे करना है. ऐसे ये जो उंगली का है ना, ऐसे ऐसे प्रेस करते हैं, नाखून से नहीं करते, ऐसे, है ना, और थंब ऐसे. सो ये दिस विल हेल्प यू टू रिलीज योर टेंशन. या हर चीज को थोड़ा काम डाउन करना है सब कुछ, तो यू विल डू दिस, है ना. सो जब बैलेंस करना है तो ये कर रहे हैं, जब कम करना है तो ऐसा कर रहे हैं. सो दिस वे वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी, धीरे धीरे उसकी हमें आदत हो जाएगी, तो फिर अपने आप आने लगेगा, है ना. शंख मुद्रा अगेन, वी ऑल नाउ वी नो शंख मुद्रा. ओके, so this is what we can do to understand the mudras, easy ways to understand. अभी तक तो यही समझा है मैंने, अगर और मुझे कुछ क्लिक हुआ तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी. मैम एसिडिटी को लेकर क्या करना चाहिए, कौन सी मतलब मुद्रा ये करना चाहिए एसिडिटी के साथ? एसिडिटी के लिए अपान मुद्रा इज वेरी गुड. सकते हो एसिडिटी को क्या करना है, वायु और अपान. वायु अपान ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है. सो वायु को मैंने कम कर आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं है. फ्रीज हो गया, फ्रीज हो गया स्क्रीन. Are you getting it right now? Now it's come back. Okay. Otherwise it was frozen. Yeah. The screen. Again it's gone. It's gone again. Yes. Now it's come. Okay. So this Vayu Apana Mudra is very good for that, for acidity. Yeah, Sunita, आपको समझ में आया ना ये? Yeah. Okay. So this is very good. For that you can definitely do this. और अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो आपको पानी बदलना चाहिए, अल्कलाइन पानी पीजिए. Okay. Very necessary for that. That is the first step. ये सब एडिशनल चीजें हैं, जो बेसिक्स है वो तो हमें करने ही है. अल्कलाइन मतलब क्या करना, पानी जैसे हम तो फिल्टर का पीते हैं. आप अल्कलाइन के लेक्चर में शायद नहीं होंगे. नहीं, मैं अभी मतलब मोस्टली पहली बार एक लेक्चर अटेंड कर रही हूँ. ओके, सो आप ऐसा कीजिए, आप कौन से ग्रुप में है, डोंट वरी बी हैप्पी और डोंट वरी बी हैप्पी 1? एक्चुअली देखते मुझे नहीं मालूम. कोई बात नहीं, आप चेक करके मुझे बोलिए. डोंट वरी बी हैप्पी में हूँ. हाँ, तो मैं एक वीडियो डालूंगी उसमें. ओके. ओके, अल्कलाइन वर्सेस एसिडिटी.
ओके, आप प्लीज वो वीडियो देखिए, पक्का पक्का, ठीक है? यस। ओके, सो लास्ट वीक हमने एक बहुत खूबसूरत मेडिटेशन किया था, जहां पर आप सब ने अपने आप को ढूंढा था कि इस साल आप क्या करना चाहेंगे। ओके, सो वो आवाज आपको मिली थी जहां पर आपने ये पता किया था कि मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे लिए क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। ओके, आज हम थोड़ा और गहराई में जाने वाले हैं। सो आज हम ये करने वाले हैं कि जिन्होंने भी हमारे साथ समय बिताया या पूरे साल में, पिछले साल में वो हमारी जिंदगी में आके गुजरे हैं, कहीं ना कहीं गए हैं, उन्हें आज हम अपने मेडिटेशन में याद करने वाले हैं। ओके, सो वी विल मीट ऑल दोज पीपल। अब उनमें से दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक, आप उनसे आज चलो एक ही चीज पे कंसंट्रेट करेंगे। ओके, सो वी विल मीट ऑल दोज पीपल हु हैव maybe in some way hurt us. Okay, they have hurt us and they have made us feel bad. So somewhere हमारे पास, हमारे अंदर अभी भी उनके प्रति कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत या तो गुस्सा है, या तो उनके वजह से दुख है, या उनके कारण ऐसा कोई आपका काम है जो नहीं हो पाया। तो आज हम उनसे मिलेंगे और उन्हें क्षमा देंगे। We will forgive them. I am not telling you forget it. I am telling you forgive. Let's start with forgive. Okay? So everybody, please sit in a relaxed position, comfortable position. Close your eyes. और आज उर्मिला आंटी भी हमारे साथ है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम हिंदी में ही बात करें। Take a deep breath. एक थोड़ी लंबी सांस लीजिए, छोटी लंबी लंबी सांस लीजिए, और लंबी सांस लेकर धीमी धीमी उसे छोड़िए, बिल्कुल धीमी धीमी। फिर एक बार जब पूरी सांस शून्य में चले जाए, फिर से एक लंबी सांस लेनी है और धीमी धीमी उसे छोड़नी है। और इस बार जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसे महसूस करिए किस तरह से वो आपके नाक से निकलकर, नासिका से निकलकर आपके थ्रोट के थ्रू, लंग्स किस तरह से मूव हो रहे हैं। आपकी सांस बिल्कुल अपने नाभि की ओर जाते हुए उसे छोड़ रहे हैं। आप पूरी तरह से खाली हो रहे हैं। और इस बार जब आप सांस लेते हैं तो आपको अपनी दिल की धड़कन सुनाई दे रही है, जो आपको याद दिलाती है कि आप जीवित हो, जो आपको याद दिलाती है कि आप स्वस्थ हो, जो आपको याद दिलाती है कि आपके जीवित रहने का कोई महत्व है। और उस महत्व को आप पहचान चुके हैं। और इसी बात के लिए अपने दिल की धड़कन से धन्यवाद करिए कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ
कि मैं इतना कुछ समझ चुका हूँ, इतना कुछ महसूस करता हूँ, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। और थोड़ी और गहराई में जाते हुए अपने आप को अब आप ऐसी जगह देख रहे हैं जो आपको पसंद है, जहाँ आपको सुरक्षित लगता है, चाहे वो कोई भी जगह हो, आपका घर हो, उसके बाहर आपका लॉन हो, या कोई बगीचा हो, या समुद्र का किनारा हो, बहता हुआ पानी हो, एक खूबसूरत घना जंगल हो, या पहाड़ों के बीच में हो, आपकी सबसे खूबसूरत जगह जो आपको पसंद हो, वहां पर आप अपने आप को देख रहे हैं, बिल्कुल नंगे पैर जमीन पर आप पृथ्वी के साथ एक होकर चल रहे हैं। और जैसे जैसे आप चल रहे हैं, हर कदम पर आपको महसूस हो रहा है कि पृथ्वी माँ की जो मट्टी है वो जैसे जैसे आपके पैर को लग रही है, आपको सुकून महसूस हो रहा है। और आपके आंखों के सामने आपको वो शख्स नजर आ रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई वजह से तकलीफ दी है। आप उन्हें देख रहे हो क्योंकि वो आपके आंखों के सामने खड़े हैं। और वो भी आपको देख रहे हैं। धीरे धीरे थोड़ा और आगे चलकर जब आप जाते हैं तो शायद आपको और कोई नजर आता है जिनके कारण आपको दुख पहुंचा है, जिनके कारण कोई कार्य आपका टल गया है, नहीं हो पाया है, जिनके शब्दों ने शायद आपको बहुत गलत महसूस करवाया है। You have not liked it. It has hurt you in some way. It has upset you. You are angry. You can see them standing in front of you. And as you go and approach them, उनके पास जाइए और धीमे धीमे उनको एक जादू की झप्पी दीजिए। आज दे ही दीजिए। उनके पास जाइए और एक एक करके हर शख्स को एक जादू की झप्पी दीजिए और उन्हें कहिए कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। I forgive you. I forgive you. तुम्हारा धन्यवाद कि तुम्हारे कारण आज मैं ये महसूस कर पाया कि दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है। I thank you for this realization and I forgive you. I forgive you. Slowly move on to the next person. And as you keep going, जिनसे जिनसे आप मिल रहे हैं, ज्यादा मत सोचिए ये कौन है, क्यों है, क्या हुआ होगा। अगर वो आपके सामने है, अगर वो आपके ध्यान में आए हैं तो कहीं ना कोई महत्व होगा।
Just look at them. Look at them in their eyes. Maybe they don't have any regret. शायद उन्हें कोई महसूस नहीं है, उन्हें इस बारे में कोई रिग्रेट नहीं है, पर आप जाइए और उन्हें एक जादू की झप्पी दीजिए और उन्हें कहिए, आई फॉरगिव यू, मैं आपको क्षमा करता हूँ और तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। तुम्हारे कारण मुझे बहुत कुछ महसूस हुआ है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। जिंदगी को अब मैं खूबसूरत अंदाज से देख सकता हूँ और जो गलती हुई है आपसे, वो गलती मैं नहीं दोहराऊंगा। आपको मैं क्षमा करता हूँ। ये कहकर आगे बढ़ जाइए और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, अपने कदमों को इस पृथ्वी पर महसूस करेंगे। आपको सामने, आपके सामने एक दिया नजर आएगा। अंधेरी रात में, अंधेरे में एक दिया नजर आएगा। जाइए, उस दिए को उठाइए, प्यार से जाइए, उस दिए को उठाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि आज आपने अपने आप को आजाद किया है। मुस्कुराइए, क्योंकि आज वो सारा दुख जो अंदर लेकर चल रहे थे, वो सारी घृणा जो आप अंदर लेकर चल रहे थे, वो सारा गुस्सा आज जो आप अंदर लेकर चल रहे थे, आज अग्नि माँ के सामने आपने वो सारा गुस्सा, सब कुछ आज आपने पीछे छोड़ दिया। और इस दिए को अपने आप में समा लीजिए और कहिए, अग्नि माँ, जिस तरह से आप इस पूरी दुनिया में उजाला करते हैं, मेरे जीवन में भी उजाला रखिएगा। मुझे शांत रखिएगा, मुझे संपूर्ण रखिएगा और अपने जीवन में मुझे पीसफुल, खुशियाँ, हैप्पीनेस, कंटेनमेंट, ये सब कुछ महसूस करने दीजिएगा। ऐ अग्नि माँ, आपको प्रणाम। ऐ धरती माँ, आपको प्रणाम। I thank you. I thank you. And with that, slowly all of you can open your eyes if you're ready and smile, because you have now let go of such big burdens. Let go of all that pain. And slowly, the book which is in front of you, whoever came in front of you, please write it down. Whatever came in front of you, write it down quickly. You may be surprised, or you may already know. जो भी था, अगर आपके सामने किताब है तो उसमें जरूर लिखिए। और यदि आप शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं।
Okay, anybody wants to share? One thing is there, as I was walking, a lot of faces kept coming, and I was kind of hurrying up and moving ahead, like how you said, ek ek se milna. It was just going too quick, Okay. so I don't. Yeah, so if that was happening quickly, that's why, do you remember the faces? Yes, I do. Can you please write all of them down? Okay. All of them, जो भी आए आपके इसमें, just write them down. Because मेरे पास वो time ही नहीं था that one person. No problem. Just okay. at least for now, just write the names down. Okay. Can we do this meditation lying down? Yes, Is you it? can. Do it lying down. I'm having crazy. So anybody wants to share anything for now? Don't worry about it if you feel that this happened and many faces came. All you need to do now is that when you open the page, you see all the names, you put your hand on that page, close your eyes, and just go back to the same place where you were, whether it was a lawn or a garden or and you anywhere, wherever you were, just go back to that same place and just say the words, I forgive you. When you meet them, you will meet them again. This time you can take your time and you can say, I forgive you. I forgive you. I let go of whatever, whether it is anger or hurt. I forgive you. You can give them a jadoo ki chappi. You can just be there and see them, or you can also thank them. That was one realization, that all these people have taught me things in a different way. They really teach us the essence of life. Yeah. What we should not do. Correct. So we should thank them for that. Correct. The chant. Yeah. So you can do this anytime now. Whenever you feel, you can even sit in the sun and do it. You can even, the moon is very beautiful right now. So you can sit in the moonlight. ये मेडिटेशन मूनलाइट में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा की जो रोशनी है, उसकी जो ठंडक होती है, उस ठंडक में जब हम बैठकर ये फॉरगिवनेस मेडिटेशन करते हैं, तो हमें अपने आप ही वैसे भी कूल डाउन हो जाते हैं. Right. So you can do it with that also. Okay, absolutely, you can do it whenever, how many ever times now. And next week we will be doing the next step of this. Okay. So yeah, so you can do that. Thank you. Yes. Nupurti, it was really nice. And the one thing which I learned today is, writing just the names, and whenever I have such feeling, just to give that wife with hand and Yeah. just say, I forgive you. It's beautiful thing. Even this can be done. So this was like one opening for me today. Thank you. Absolutely can be done. Just writing the name
and giving the vibrations from the hand and saying, I forgive you. And in that moment, if you just imagine yourself somewhere and that person in front of you, you just look at them, give them a jadoo ki chappi, or smile at them and say, thank you. I forgive you. I let go. It is such a relief. And the only reason I say, okay, imagine yourself or you are in a place is because that is your safe place. You know, many times एक situation होता है जहाँ पर हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ना चीजें, और फिर उस जगह से हमें बहुत कभी कभी वह जगह उस जगह से हमें डर हो जाता है, उस सिचुएशन से डर हो जाता है. तो जब हम किसी को माफ कर रहे हैं तो हम अपनी एक सेफ जगह में उन्हें क्षमा दे रहे हैं. तो हमने वो पूरी तरीके से फिर हमने वो डर निकाल लिया. हम वापस उस जगह में नहीं जा रहे हैं, हम फिर से उस जगह को याद नहीं करना चाहते हैं, वो सब हम नहीं करना चाहते. हमारी एक अपनी सेफ जगह है, उसमें मैंने आपको देखा है और मैं आपको क्षमा कर रही हूँ. तो उसके वजह से हमारा बहुत हम हल्के हो जाते हैं उसके वजह से, बिकॉज नाउ वी नो कि ये इतना पोर्शन मेरे कंट्रोल में है, सो ये मैं कर सकती हूँ. दैट्स व्हाई दैट स्पेस इज इम्पोर्टेंट ओनली फॉर दैट. अदरवाइज तो आप कभी भी ये कार्य कर सकते. So very nice. We will do the next step of this next week. Okay. And of course, we will continue with some more editions of mudras. We will continue with some more information about mudras. तो वो तो हम ज़रूर करेंगे. But we will continue with this. इस पूरे हफ्ते में आप ये क्रिया करते जाइए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, देखिए अगर आपको कुछ और फील होता है, कुछ और महसूस होता है तो ज़रूर शेयर करते रहिएगा एंड लिखते रहिएगा. ऑलराइट. यस नेहा, जो आपने महसूस किया, जो आपको समझ में आया, आप वो ग्रुप में भी डाल सकती हो इफ यू फील. ओके. थैंक यू एवरीबॉडी. लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू. बिग जादू.